ہاں جناب. جی سلفی صاحب، ہاں تو سب سے پہلی بات تو ہمارے بیچ میں تکلیف یہ موضوع طے ہو گیا، متعین ہو گیا. ہاں میں نے اپنا دعویٰ بتا دیا کہ ہم اہل سنت والجماعت احناف کا یہ دعویٰ ہے کہ تقلید شخصی واجب ہے اور اس کا انکار کرنے والا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جواب دعویٰ میں مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ تقلید مطلق بدعت ہے اور تقلید شخصی یہ شرک ہے. ٹھیک ہے، آپ کا دعویٰ تھا. اب دوسری بات، اب میں آپ شرائط پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، ہاں پڑھ لوں ہاں میں ہاں شرائط؟ پڑھو پڑھو پڑھو. جی شرائط پڑھ رہا ہوں نا. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو شرائط نمبر 1 ہے کہ اہل حدیث غیر مقلدوں کا دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، ایک ہاتھ قرآن ہے، ایک ہاتھ حدیث ہے، تیسرا کوئی ہاتھ نہیں اور تیسری کوئی کتاب نہیں. تو اہل حدیث غیر مقلد کو چاہیے کہ وہ ہر مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر قرآن یا اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب سے پیش کرے. ٹھیک ہے، کس نے کیا یہ دعویٰ؟ آپ کا دعویٰ نہیں ہے قرآن حدیث؟ قرآن اور حدیث ہے نا، لیکن یہ دعویٰ کہ ہر ایک بات ہاں، صرف قرآن اور حدیث سے ہی ہم ثابت کریں گے. پھر کیونکہ آپ مطلق آپ کے نزدیک بدعت ہے تو آپ کو حق حاصل اجماع امت ہے کہ نہیں؟ منکر کیا؟ ہو گئے کیا آپ؟ اجماع آپ امت کے منکر ہو گئے؟ آپ اجماع کو مانتے ہیں؟ ہاں، اجماع کو مانتے ہیں؟ اور قیاس شرعی آپ اس مانتے کے بھی ہیں؟ منکر ہوگا. یہ دونوں ارے آپ مانتے کیا؟ ارے آپ مانتے ہیں؟ پوچھا میں نہیں ہاں بتا رہا. آپ مانتے الحمدللہ کیا؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے، ہاں رک جائے پھر. تو ہاں دوستو، یہ اہل حدیث غیر مقلد کا دعویٰ ہے اہل قیاس کا اجماع اور قیاس شرعی. ان کے 4 دلائل ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ 4 دلائل ان کے کیسے دیتے وہ آگے انشاءاللہ آئے گا. ٹھیک ہے، پہلی ٹرن مدعی کی ہوگی جیسے کہ میری، اور دوسری مدعا علیہ کی جیسے کہ سلفی صاحب کی، اور ایک 2 منٹ کا ٹائم ہوگا. جب میں بولوں گا تو بیچ میں آپ نہیں بولیں گے، آپ بولیں گے بیچ میں تو میں نہیں بولوں گا. ٹھیک ہے، اہل حدیث غیر مقلد جو بھی اصول حدیث یا جرح و تعدیل کا علم یہ پیش نہیں کرے گے کیونکہ ان کو حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تقلید مطلق بدعت میں نے ہے. اس کو ٹھیک ثابت ہے، کیا ہوں کہ جرح و تعدیل کا علم یہ جو ہے تقلید نہیں ہے. یہ بالکل تقلید ہے. پھر دلیل میں پیش کرے. نے تعریف میں پیش کیا ہے. بالکل پہلے دلیل پیش کرے پھر آپ. میں نے تعریف میں پیش کیا ہے کہ گواہوں کی طرف اور دلیل کی طرف رجوع دیکھیں، کرنا، سب سے نبی علیہ پہلی السلام کی تو بات کی طرف رجوع کرنا، یہ آپ کے خود گھر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ تقلید نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ اچھا، جرح و تعدیل کا علم تقلید میں ہی آپ کو کس نے بتایا؟ دلیل اور گواہوں کی طرف رجوع کرنا کیسا تقلید گواہ؟ نہیں ہے. کیسا گواہ؟ قرآن حدیث پیش کرے آپ. ہاں؟ قرآن حدیث پیش کرے اس پہ آپ. کس بارے میں قرآن اور حدیث کی دلیل اس چاہیے پہ آپ کو؟ جیسے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، امام حجر رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نہیں تو کو موضوع کہتے ہیں. کس تو حدیث میں آپ کس وجہ سے ضعیف کا ہے وہ بتاؤ نا، میں دیتا ہوں دلیل. ارے کون سے بھی فلاح ہندو نا حدیث، یعنی میں تو آپ کو اگر مطلق بتا رہا ہوں. جیسے راوی کذاب ہے، جھوٹا ہے، ہاں بالکل. ہاں تو اس پہ دلیل کیا ہے؟ ہاں، آپ تو نے دلیل محدثین مانی نے نا. کیا یعنی بس یعنی جھوٹ یعنی باندھ دیا ان کے اوپر، اور جھوٹا یعنی الزام لگا دیا کہ یہ اس پہ جھوٹا تھا، کذاب تھا. انہوں نے اس کی تحقیق نہیں کی، اس کی یعنی تصدیق نہیں کی، اس کی تحقیق نہیں کی. تو کیسے کی؟ دلیل تو ہوگی ہاں، نا. کیسے کی؟ تصدیق کی کہ نہیں، اس کی تحقیق کی کہ نہیں، لوگوں سے سیکھا، لوگوں سے اس کے حالات کو معلوم کیا کہ نہیں کیا تو کہ کیسے کیا یہ پوچھ رہا ہوں نا. ارے وہی تو بول رہا ہوں کہ وہ جو ان کے علم میں جو سیکھا لوگ تھے، سیکھا لوگوں سے پوچھا کہ نہیں کہ یہ جھوٹ تو نہیں بولتا ہے، یہ سچا ہے کیا نہیں، میری بات یعنی گواہی کو قبول کیا کہ نہیں کیا، سچے لوگوں سے گواہی کو قبول کیا کہ نہیں کیا. سیلفی صاحب اتنا جذبات میں کیا؟ میرے بات تو ارے تو میرے بھائی تو بھاگ رہا ہے نا. ارے بات تو جو تیرے گھر کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ گواہوں کی طرف دلیل کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں ہے، تو پھر تو اس کو تقلید کیوں بنا رہا ہے؟ تو اس کو تقلید کیوں بنا رہا ہے؟ تو پہ آ گیا. ارے میرے بھائی بول رہا ہوں تیرے کو میں، بھائی تقلید کیوں مان رہا ہے بھائی اس کو؟ میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں، دیکھ تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے کہ امام حجر رحمت اللہ علیہ 8ویں صدی کے محدث ہے. ٹھیک ہے تقریباً. اب تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے سکھا لوگوں سے اس کی تحقیق کی. تو اب تو مجھے بتا دے یعنی پھر تیرے دعوے کے حساب سے تو یہ ہو گیا کہ جو محدثین نے کسی کے اوپر کذاب اور جھوٹا ہونے کا یعنی جو دعویٰ کیا ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے بس یعنی اس کے اوپر ایک الزام لگا دیا، انہوں نے اس کے بغیر تحقیق کے اس کو جھوٹا اور کذاب قرار دیا ہے. تو اس پہ تو دلیل پیش کرے گا نا کہ انہوں نے قرآن حدیث سے بتایا بول کے. تو بنا دلیل کے مطالبے کے مان رہا ہے نا ان کی باتیں.
अरे सच्चे लोगों की गवाही को कबूल करना शरीयत में है या नहीं है? अरे तो वही कह रहा हूँ मैं तुझे, तूने किसने कहा कि इमाम ज़ाहिबी सच्चे? बता चल, कुरान हदीस में कहाँ लिख के है इमाम ज़ाहिबी सच्चे? अबू हनीफा की अंधी तकलीद को हाँ? साबित करने के लिए किस हद तक गिरोगे? कितना तुम देख, लोगों को दोस्तों- जो है मुगालते दोगे, मक्कारी करोगे? ये दोस्तों देखो मुझे बोल रहे, ये कह रहे हैं कि इमाम ज़ाहिबी सच्चे, कुरान हदीस में कहाँ आया है? तो कज़्ज़ाब अरे होने, मुझे बता नहीं उनके कज़्ज़ाब होने का हुक्म लगा, मैं दलील से साबित करूंगा। किस पे? हाँ, किसके ऊपर लगा रहा है तू? तो अभी तू किसके बारे में पूछ रहा था कि सच्चे है या नहीं? तू कह रहा है कि एक मुहद्दिस ने हुक्म लगाया है हाँ। कि ये रावी सिका है, ठीक है, हाँ। या कज़्ज़ाब है, हाँ या ज़ईफ है, ठीक है। हाँ तो अब जिस मुहद्दिस ने हुक्म लगाया है, हाँ, उस वो मुहद्दिस दलील की ने बुनियाद वो पे लगाया, हदीस तहकीक की किस बुनियाद दलील? पे लगाया, गवाही की बुनियाद पर लगाया है। कैसी दलील की? उसका जवाब हाँ? तो देना, कुरान हदीस पे वही रखना तो है। बता रहा हूँ ना कि अब उन्होंने बता। जो है सच्चे लोगों से जो उसके बारे में तहकीक की, कौन से ये सच्चे सच्चा लोगों है से? या नहीं? तो कौन से सच्चे सच्चा है या से? नहीं? रावी है, अधिक रावी है 100 हिजरी का, रावी है 90 हिजरी का, रावी है 95 हिजरी का, इमाम ज़ाहिबी रहमतुल्लाह अलैह 700 हिजरी के अरे है। सनद तो दर फिर सनद आई है कि नहीं है? कैसी सनत आई? कैसी सनत आई? मुझे अरे बताओ, तो कैसी तकलीफ सनत? में तेरे पास दलील नहीं है क्या? अरे इमाम तो अबू सनद हनीफा की कैसे आई है? तकलीफ के ऊपर वो उसूल तुझे जरा कह- तादील में चला गया तू। अरे तो तू तकलीफ तो तकलीद के देख, मौजू के ऊपर मुझसे बात करने वाला था। तू अच्छा देख, चल तू चल, अगर अच्छा चल, एक काम तकलीफ कर, एक मुतलक काम कर, तूने एक काम बिदअत कर। कह ए, दिया तो सुन तेरी सुन, धुलाई तो करूंगा ना, सही इसको, दी, बिदअत सही है ना तूने? दी, सही दी, सही दी। तकलीफ का मतलब खुद तो नहीं बिदअत नहीं है, नहीं तो नहीं धुलाई नहीं तो नहीं, होगी सुन, तेरी। एक काम कर, एक काम अगर कर, देख, तू जुबैर से कहता है टॉपिक कि तू तकलीफ है, टॉपिक मुतलक ये बिदअत तय नहीं है। कर, तू टॉपिक ये तय कर कि उसूल जरा वो तादील को मानना तकलीद है या नहीं? अबे तू ये मौजू कर, इमाम अबू हनीफा की तकलीद वाजिब का, यानी जो तू मौजू लगा कि अब जो सुन। जरा वो तादील की बात को मानना, उसूल तेरा हदीस जो को मानना सुन, जो है सुन, तकलीद तेरा तू कहना है, तेरा तो जो ये जुबैर मौजू भाई रख। है, सुन, तेरा जो जुबैर भाई है वो दुशार था, उसे भी पता तू था सुन रे, कि सुन तकलीफ मुतलक बिल्कुल भी बिदअत नहीं है। उन्हें खुद इकरार भी किया वीडियो में, लेकिन उसे पता था वो फंसीगा बोल के, इसलिए उन्होंने पहले इकरार कर दिया। अरे मैं उससे अलग पहले अलग दलील के इकरार साथ किया। साबित कर रहा हूँ ना, तो करना तकलीद साबित मुतलक करो। भी बिदअत है। अगर साबित कर अरे सकते, हकी अरे हासिल नहीं है अरे फिर। तो तेरे को अगर तू जरा वाजिब साबित की कर। दलील दे रहा है तो तेरे को दलील देना पड़ेगा ना, मैं तो इनकारी हूँ। मैं तो दलील दूंगा ना, तू तो देना, दलील देना। तू जरा वो तादील में कहाँ चला जा रहा है? दे दलील दे, दलील देना, वाजिब की दलील अल्लाह और उसके रसूल से दे ना। वाजिब की दलील अल्लाह और वाजिब का दावा, बिदअत कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ है ही नहीं। तो अब तू जब वाजिब का तू दावा, अरे तो है ही नहीं ना कुरान और हदीस के अंदर। अरे लफ्ज तकलीद ही कुरान और हदीस के अंदर नहीं है। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, तो फिर लफ्ज तूने कैसा- तकलीद ही कुरान और हदीस के अंदर नहीं है। लफ्ज जरा और तादिल का भी कुरान हदीस में लफ्ज नहीं है। उसूल दिया ना अल्लाह ताला ने आयत से। आत्मा और रिजाल में भी अल्लाह ताला ने इसका भी उसूल बताया। सच्चे लोगों की गवाही को कबूल करने का हुक्म दिया है। यत्तबीऊन यानी तकलीद पैरवी, तकलीद और अच्छा। इत्तिबा में फर्क नहीं है, इसे भी उसूल अल्लाह ताला ने दिया है। तकलीद और ठीक है। इत्तिबा में फर्क नहीं है। बिल्कुल। जबकि अल्लामा इब्ने अब्दुल बर कहते हैं कि मुकल्लिद में और जानवर में कोई फर्क नहीं होता। पढ़ सनद पढ़ पढ़ना। अच्छा तुमका अल्लामा इब्ने अब्दुल बर कहते हैं हाँ पढ़ना, इबारत कि पढ़, इबारत पढ़। इबारत का तर्जुमा ही बता रहा हूँ तेरे, मुकल्लिद पढ़। और जानवर में कोई फर्क नहीं होता है। पढ़ना इबारत, स्कैन पेश करो, इबारत पढ़। मतलब चल तकलीफ इसके कर, भेजता हूँ मैं तकलीफ से। तेरे को। सुन, अच्छा पहले तू ये तकलीफ से कर रहा है। तकलीद कहाँ हो रही है? अबे तो गवाहों की तरफ रुजू करना, दलील की तरफ रुजू करना, काजी, अभी तूने किसका हवाला किया मुझे? ये सब जो है तेरे खुद हुसूल की, तेरे मजहब की किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि ये तो तकलीद हमारा- नहीं है। तो मतलब तो हमारे मजहब की तकलीफ करेंगे? तेरे मजहब के उसूल की किताबों में लिखा है उसूल की कि किताबें हमारे मेंढा होता है ना, मेंढा भेड़ होता है ना, भेड़, हमारे आंख उसूल बंद की- करके किसी के पीछे चलना जो है तकलीद है। और दलील तुझे का क्या कह रहा हूं, मुतालबा हमारे उसूल किए की- बगैर हमारे उसूल की दलील किताबें हमारे दलील लिए ना, तुम्हारे दलील लिए तो नहीं है। हाँ हमारे लिए कुरान हदीस है सिर्फ। हाँ, तो मैं हमारे तेरे उसूल उसूल की तेरे ही तो सर के ऊपर थोप रहा हूँ, मैं कहाँ अपने सर पे ले रहा हूँ? तू तेरे ही सर पे तो लाद रहा हूँ मैं। तेरे मजहब के उसूल तेरे ही कंधे के ऊपर, तेरे ही सर के ऊपर मैं थोप रहा हूँ, तू कह रहा है कि तकलीफ और जिसका तू इनकार कर रहा है। और जब मैं तुझे कह रहा हूँ कि इमाम ज़ैबी 8वीं सदी में आके रावी पे जरा कर रहे, तू कह रहे हो सनद है। तो अब मुझे बता, अच्छा एक मिनट, उन्होंने डायरेक्ट कह दिया, यानी बीच में सनद को बयान नहीं किया उन्होंने? कहाँ से तू कुरान हदीस पेश करी? नहीं, किसी यानी मुहद्दिसीन ने अगर किसी रावी के ऊपर जरा किए तो, और जो हदीसें बयान किए तो वो सनद के साथ में, यानी रावी फला ने फला से सुना, फला ने फला से सुना, ये पूरी सनद बयान की है कि नहीं है? मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, अच्छा चल तू पहले ये तय कर ले कि तेरे को किस मौजू पे बात करना है। अबे तू पहले मुझे तू तय कर ले कि उसूल जरा व तादील को मानना तकलीद है या नहीं, इस मौजू के ऊपर बात करना है कि इमाम अबू हनीफा की तकलीद वाजिब है, तेरे को इसके ऊपर बात करनी है।
पहले तू ये तय कर ले, तू इतना कंफ्यूज हो गया है, तेरे अंदर इतने छेद हो गए कि अब तू कंफ्यूज हो गया कि तू सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से। ये रिकॉर्डिंग डालूंगा सब समझ जाएंगे, तूने खुद इकरार किया। तू अब इतना कंफ्यूज हो गया है कि तुझे यही नहीं पता चल रहा है कि तू सांस कहाँ से लेगा और पादेगा कहाँ से, तू इतना कंफ्यूज हो गया है। तू वाजिब, तू ये मौजूद तय किया है कि इमाम अबू हनीफा की तकलीद वाजिब है, तू ये इसके ऊपर मुझसे बात करने की बात तूने दावा किया और तू अब भाग रहा है कि उसूल जराओ तादील को मानना जो है तकलीद है। पहले बात तो सुनना मेरी, 2 मिनट बोलने दे ना मुझे। चल बोल। इसने मुझसे पहले कहा था कि तकलीद मुतलक बिदअत है, आप लोगों ने सुना। फिर इसने मुझे कुरान और हदीस में हुक्म नहीं है, तू है तो साबित करके दिखा। अरे मुझे बोलने तो देना इस्माइल, पहले मुकम्मल बात तो करने देना मुझे। तो इन्होंने मुझसे एक कुरान की आयत दी थी सूरह हुजरत कि अगर कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लाए तो उसकी तहकीक कर ले करो। तो मैंने इससे कहा था कि तू मुझे इसकी तफसीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेश कर, ठीक है। तो पहले कुरान की आयत की हक किसको है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक है कि नहीं? क्या 8वीं सदी के मुफस्सिर को हक है कुरान की तफसीर पेश करने का? क्या अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह को हक है? क्या अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह को हक है? क्या अल्लामा इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह को हक है? क्या अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह को हक है? क्या अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह को हक है? क्या अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह को हक है? इन्हें हक है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले हक है पेश करने का? तो मुझे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर बता दे कि आपने इस फासिक की आयत के बारे में क्या फरमाया है। इससे मुराद उसूल हदीस है, जरा वो तादिल है, आसमा और रिजाल है, और ठीक है। और इसके इनकार पे हुक्म शरा क्या लगेगा, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट कह दिया है कि तकलीद मतलब बिदअत है। बोला ये मुफस्सिरीन के ऊपर ये इल्जाम लगाना चाहता है कि मुफस्सिरीन ने जो है नबी अलैहिस्सलाम की बातों को छुपा दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने जितनी सराहतन यानी किसी आयत की, हदीस की, किसी भी बात की अगर नबी अलैहिस्सलाम ने जो है सराहत यानी वजाहत कर दिया है तो मुहद्दिसीन ने जो है, असलाफ ने, हमारे अइम्माए दीन ने जो है उसको बयान कर दिया है किताबी शक्ल के अंदर, चाहे वो तफसीर की किताबें या हदीस की शरह की किताबें हैं, उसके अंदर उसकी वजाहत आ गई है। अब ये ऐसी चीज का मुतालबा कर रहा है जो सराहतन नबी अलैहिस्सलाम से जो चीज साबित नहीं है, ये जाहिल एक मुतालबा कर रहा है कि नहीं मुझे तो ये बात बस नबी अलैहिस्सलाम से ही चाहिए। जहां पर सराहतन नहीं है वहां पर जो है वजाहत को जो है मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, अइम्माए दीन ने जो है, और हम जो है कुरान और हदीस को जो है इमाम अबू हनीफा की तरह अपनी अकल से नहीं समझते हैं। जिस तरीके से इमाम अबू हनीफा ने अकल के घोड़े दौड़ाकर जो है कुरान और हदीस के खिलाफ यानी कयास किया, हम कुरान और हदीस को जो है अल्लाह ताला ने जो कहा है कि अगर तुमको इल्म नहीं है अहले इल्म से पूछ लो, तो जो ताबईन, तबे ताबईन, अइम्माए दीन, सल्फ सालेहीन है, हम उनकी समझ से जो है कुरान और हदीस को समझते हैं। अच्छा, ये इससे मुराद तबे ताबई है, ये कुरान में कहाँ आया है, हदीस में कहाँ आया है? हदीस वही तो बोल रहा हूँ ना कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुमको नहीं अहले इल्म से पूछ लो। तो आज उम्मत का हाँ मुराद कौन है? अच्छा मेरे को ये बता, अभी तू असल में बात रिकॉर्डिंग लंबी करके तू दूसरी तरफ भाग रहा है। मेरे को ये बता, तकलीद इमाम अबू हनीफा की तकलीद वाजिब है, इसकी तेरे पास दलील है या नहीं? तेरे पास दलील है या नहीं? दलील है या नहीं? इमाम अबू हनीफा की तकलीद वाजिब है, इसकी तेरे पास दलील है या नहीं? देख अभी तूने क्या है तो पेश कर। अब तू दूसरी तरफ भागेगा। हाँ, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अगर तुमको इल्म नहीं अहले इल्म से पूछ लो। सूरह नहल आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ये। अरे बाबा, तो अहले इल्म कौन है? उससे मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अहले इल्म से मुराद जो है नबी अलैहिस्सलाम के बाद साहबा है, साहबा के बाद ताबईन है, ताबईन के बाद तबे ताबईन है। अच्छा, साहबा से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 बेहतरीन जमाने हैं, 3 बेहतरीन जमाने, मेरा जमाना, मेरे बाद वाला जमाना, उसके बाद वाला जमाना। नबी अलैहिस्सलाम ने इसके ऊपर शहादत गवाही दी है भाई, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है इसके ऊपर। अच्छा, तो इमाम आजम को ताबई मानता कि नहीं मानता? किसको? अगर ताबई, अगर चल मान भी लिया, अगर वो ताबई था तो लेकिन तो उसमें कौन सा बड़ा तीर मार लिया? यानी वो दौर में था ताबईन के, अगर दौर में, एक मिनट, ताबईन के दौर में हर आदमी जो है वो अहले इल्म था। उसमें फासिक, फाजिर, गुनेगार भी थे या नहीं थे? नाफरमान भी थे या नहीं थे? गैर मुस्लिम भी थे कि नहीं? ताबईन और तबा ताबईन के दौर में काफिर और कुफ्फार भी थे कि नहीं? गैर मुस्लिम थे या नहीं थे? इस्माइल, पहले बात तो सुना मेरी। तूने कहा कि ये तीन दौर अच्छे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा और ताबे। तो तू अब मुझे ये अहले इल्म की तू तफसीर साहबा से दिखा है तो ताबे से दिखा, चल दोनों से दिखा चल। और वो फासिक की खबर जो तूने वो भी तो दोनों से दिखा, उनके पीछे मत भाग।
चल आजा, मैं तेरे को अब पूरा स्क्रीन देता हूँ। चल अभी कल बाकी की बात जो है हमारी कल जोहर के बाद होगी इंशाल्लाह। अभी स्कैन दे और चल बे, तेरे ऐसा फुगड़ थोड़ी हूँ मैं, तेरे ऐसा फुगड़ थोड़ी हूँ कि तेरे पीछे लगूंगा मैं। भाग रहा है। अब ये तेरी दोनों रिकॉर्डिंग डालता हूँ, ये तेरी जिल्लत अभी शेयर करता हूँ मैं। कल जोहर बाद फिर फोन करूंगा, टेंशन मत ले। जोहर बाद कल फिर फोन कर रहा हूँ करूंगा। साले हिजड़े, तू खुद एक कॉल नहीं कर रहा, तो मैं ही कॉल कर रहा हूँ।